Brothers and sisters, I'm very happy to see you all and to talk to you today. और भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको मैं आज देख पा रहा हूँ और आपसे बात कर पा रहा हूँ। Many things around us teach us that we are coming into the days just before the return of our Lord Jesus. हमारे आसपास घटने वाले कई चीजों से हम ये देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बहुत ही करीब हम आ पहुंचे हैं। I think the most privileged Christians were those who lived in the first century at the time of Jesus, just after he rose, after he ascended to heaven. और मुझे लगता है सबसे सौभाग्यवान मसीह वो थे जो यीशु मसीह के जीवन के तुरंत बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया उसके बाद जो जीते थे। And the next most blessed people are those who are living in the last days, like us. और वे दूसरे जो सबसे आशीषित लोग हैं वो है जो अंतिम दिन में जी रहे हैं हमारी तरह। So we must realize that we are a very blessed people to prepare the world and the church, especially for the coming of our Lord Jesus. और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम बहुत सौभाग्यवान लोग हैं कि हम उसकी कलीसिया के नाते लोगों को तैयार करने के लिए यहाँ हैं। So all of us, if you have given your life to Christ, we have a tremendous responsibility. हम में से सबों ने, अगर आपने अपना जीवन मसीह को दिया है तो हमारी एक बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। And we are just like if you are given a very responsible job in your office, you will take it seriously. In the same way, we must take our Christian witness seriously. और बिल्कुल जैसे अगर आपको आपके नौकरी की जगह बहुत जिम्मेदारी का काम दिया जाए, आप कैसे गंभीरता से लेते हो, वैसे ही एक मसीह होना इन अंतिम दिनों में हमें बहुत गंभीरता से लेना है। Many of you are working. You take your job very seriously, otherwise you won't get your pay at the end of the month. आप में से कई लोग काम कर रहे हो और आप अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते हो, नहीं तो महीने के आखिर में आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिलती। You will try your best to always be on time and work the full hours, otherwise your boss may sack you. आप हमेशा हर दिन जाकर पूर्ण जितना समय है उतने घंटे काम करने की कोशिश करते हो, नहीं तो आपका बॉस आपको निकाल देगा। We have to take our Christian life as seriously or more seriously than that. हमें अपने मसीह जीवन को उतना ही या उससे भी अधिक गंभीरता से लेना है। So I want to turn to a passage in Matthew chapter 10. मैं मुड़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के एक वचन की ओर। Things were relatively easy for Christians in India 50 years ago. 50 वर्षों पहले भारत के जो मसीह लोग थे उनके लिए चीजें काफी आसान थी तुलनात्मक रूप से। We could preach in the open air in many parts of India, even in North India. और भारत के कई जगहों में, यहाँ तक कि उत्तर भारत में भी सामने सार्वजनिक रूप से हम प्रचार कर पाते थे। But it's very different now. पर आज चीजें बिल्कुल अलग है। But Jesus told us it will be like that. पर यीशु ने स्वयं हमें बताया कि चीजें ऐसी ही होंगी। That as we approach the end of time, कि जैसे हम युग के अंत में आएंगे, it's going to be more and more difficult for true believers. सच्चे मसीहों के लिए और अधिक कठिन होते जाएगा सब। Now, God is Almighty. It's very easy for Him to manifest His power on behalf of all His children. अब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके लिए बहुत आसान है कि उसके लोगों की, उसके बच्चों की ओर से वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करे। But we can wonder, why doesn't God manifest His power on our behalf just like He did in the Old Testament for the Israelites? फिर हम कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से अपने सामर्थ्य को क्यों प्रदर्शित नहीं करता, जैसे पुराने नियम में उसने इस्राएलियों के लिए किया था। In the Old Testament, you read many stories where people could not attack the Israelites because God was on their side and they would always win. और पुराने नियम में हम कई कहानियां पढ़ते हैं कि लोग दूसरे राष्ट्र इसराइलियों पर चढ़ाई नहीं कर पाते थे, जीत नहीं पाते थे, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था। Many stories like that throughout the Old Testament. ऐसी कई कहानियां संपूर्ण पुराने नियम में। The only time God did not support the Israelites was when they were living in sin. और केवल कब परमेश्वर उनका समर्थन नहीं करता था, जब वे पाप में जीते थे। But otherwise, He always defeated their enemies and made them triumphant. पर अन्य परिस्थितियों में हमेशा इसराइली अब लोग अपने शत्रुओं को हराते थे और परमेश्वर उनको जयवंत बनाता था। Why doesn't God do that for us अब today? क्यों परमेश्वर आज हमारे लिए भारत में नहीं करता? The new covenant is
superior to the old covenant. नई वाचा पुरानी वाचा से बढ़कर या ऊंची है। But there are many differences in the new covenant and old covenant. और नई वाचा और पुरानी वाचा में कई अंतर है। In the old covenant, if you're faithful to God, you'll become rich. और पुरानी वाचा में परमेश्वर के प्रति आप विश्वास योग्य रहो तो आप धनवान, आप अमीर बनोगे। But in the new covenant, the godliest people in the New Testament, like Jesus and Paul, were not rich. पर नई वाचा में जो सबसे ईश्वरीय लोग थे जैसे यीशु और पौलुस, वे अमीर या धनवान नहीं थे। And all the apostles, great men of God, were all poor. और सारे जो प्रेरित है परमेश्वर के महान जन, वे सब के सब गरीब थे। But in the Old Testament, people like David and Solomon were so wealthy, they were some of the richest people in the world. पर पुराने नियम में दाऊद और सुलेमान जैसे लोग इतने अमीर थे कि शायद संसार के सबसे धनवानों में उनका नाम था। So there is a lot of difference in the new covenant and the old covenant. और इसलिए पुरानी वाचा में और नई वाचा में बहुत ज्यादा अंतर है। In the new covenant, the emphasis is always on the spiritual, not the material and physical. नई वाचा में जो जोर है वो हमेशा आत्मिक पर है, शारीरिक पर नहीं। And God wants to prove to this world that He's got a people who will be faithful and holy, even if they are poor and even if they are persecuted. और परमेश्वर इस संसार को साबित करना चाहता है कि उसके पास एक ऐसे लोगों का झुंड है जो पवित्र और विश्वास योग्य होंगे, इसके बावजूद कि वे गरीब हैं। It doesn't matter, even if they are persecuted, they'll be faithful to the Lord. और अगर वे उन्हें सताया जाए फिर भी वे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होंगे। So turn with me to Matthew chapter 10 और मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 10वां अध्याय and verse 16. उसका 16वां वचन। I think this is a very relevant verse for Christians in North India today. और मुझे लगता है कि आज उत्तर भारत में जो मसीह है उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये वचन लागू होता है। See Matthew 10:16. I send you out as sheep in the midst of wolves. मत्ती 10:16, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you have come from many parts of North India. आप लोग उत्तर भारत की कई जगहों से यहाँ एकत्रित हुए हो। As you go back home, what is the Lord saying to you? जब आप घर लौट कर जाते हो तो प्रभु आपसे क्या कह रहा है? I'm sending you out as sheep in the midst of wolves. मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेज रहा हूं। What can a sheep do when a wolf comes? अब एक भेड़ क्या ही कर सकता है जब भेड़िया सामने आ जाए तो? Even 100 sheep coming together, one wolf can tear them apart. अगर 100 भेड़े भी एक साथ एकत्रित हो जाए पर एक भेड़िया उन्हें फाड़ खा सकता है। And you may feel that your church is like that. और आपको लग सकता है कि आपकी कलीसिया ऐसी है। You say, why didn't the Lord make us like wolves and the people in the world like sheep? और हम सोच सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने हमें भेड़ियों के समान नहीं बनाया और संसार के लोगों को भेड़ों के समान नहीं बनाया? Because God does not manifest His power in the church through physical strength and power. क्योंकि परमेश्वर कलीसिया में अपने सामर्थ को शारीरिक बल से या शारीरिक सामर्थ्य से प्रदर्शित नहीं करता। Old Testament it was like that. पुरानी वाचा में ऐसा था। When God was with the Israelites, they had power to defeat all their enemies. जब परमेश्वर इस्राएलियों के साथ होता था तो उनके पास सामर्थ्य थी कि सब शत्रुओं को वह हरा दे। But in the New Testament, when God was with His servants, they were persecuted by their enemies. पर नई वाचा में जब परमेश्वर अपने सेवकों के साथ था तो उनके शत्रुओं के द्वारा उनका सताव किया गया। It is the opposite of the old covenant. पुरानी वाचा के ये बिल्कुल विपरीत है। If you are unfaithful to God in the old covenant, the enemies defeated you. पुरानी वाचा में परमेश्वर के प्रति आप अगर अविश्वास योग्य रहे तो शत्रु आपको हरा देते थे। But if you are faithful to the Lord, you always overcame. अगर आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थे तो आप हमेशा जयवंत होते थे। But in the new covenant, it seems to be the opposite. पर नई वाचा में शायद बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। All the compromising Christians who tell lies and cheat and do so many wrong things, they seem to prosper. और सारे मसीह जो झूठ कहते हैं, समझौता करते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है कि वे लोग बहुत ज्यादा उनके अंदर अच्छा आर्थिक वृद्धि हो रही है। And they
make money and seem to be getting off well off in the world. और ऐसा दिखाई पड़ता है कि अच्छा पैसा कमा रहे हैं, संसार में अच्छे से जीवन जी रहे हैं, And those who are faithful to the Lord seem to very often be poor and struggling. और कई लोग जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है, ऐसा लगता है कि वे गरीब भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। It was like that in the first century too. पहले शताब्दी में बिल्कुल ऐसा ही था। See, Paul was the greatest servant of God that we read of in the New Testament. पौलुस सबसे महान सेवक था, जिसके बारे में परमेश्वर का सेवक था, जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं। And he was persecuted so badly और उसका इतना बुरी तरीके से सताव किया गया, because, like we read in this verse, the Christians were like sheep in the midst of wolves. क्योंकि जैसे हमने इस वचन में पढ़ा कि मसीही लोग भेड़ियों के बीच भेड़ों के समान थे। So let me show you some of the persecutions that the Apostle Paul faced. मैं आपको कुछ ऐसे सताव दिखाना चाहता हूं जो प्रेरित पौलुस ने जिनका सामना किया। And he was the most faithful servant of God in the first century. और पहले शताब्दी में सबसे अधिक विश्वास योग्य परमेश्वर का दास वो था। And what was his life like? उसका जीवन कैसा था? You know, he talks about boasting about his. Many people boast. He says, I'll also boast. और वो घमंड करने की, बढ़ाई करने की बात करता है। कई लोग बढ़ाई करते हैं तो मैं भी करूंगा। Today, people boast that our church there are 1,000 people. और आज लोग किस बारे में बढ़ाई करते हैं कि हमारे कलीसिया में तो 1000 लोग हैं, Or I preached in 25 countries. या मैंने 25 देशों में जाकर प्रचार किया है, Or I preached a crowd of 50,000 people. या मैंने 50,000 के भीड़ के सामने प्रचार जाकर किया है। Worldly politicians also boast such stupid things. और संसार के जो राजनेता है वो भी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। But that is not what Paul boasted in. पर पौलुस ने इन बातों में बढ़ाई या घमंड नहीं किया। Paul also established churches, but he never boasted about that. पौलुस ने भी कलीसियाओं को स्थापित किया, पर उसने इन बातों में घमंड या बढ़ाई नहीं की। So turn with me to 2 Corinthians 11. मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों का 11वां अध्याय। And he says in verse 18, 18 वचन में वो कहता है, since 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians 11 verse 18. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 18 वचन। He says, since many people are boasting according to the flesh, I will also boast. जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूंगा। How is he boasting? वो कैसा घमंड करता है? He says, compared to these other preachers, verse 21, I look like a weak person compared to them. और 21 वचन में वो कहता है कि इन दूसरे प्रचारकों की तुलना में मैं तो बड़ा निर्बल दिखाई पड़ता हूं। But let me tell you about what I boast about. पर मैं किस बारे में घमंड करूंगा मैं आपको बताना चाहता हूं। Now turn to verse 23. 23 वचन निकालिए। Are they servants of Christ? क्या वे भी I'm also more a servant of Christ. क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं उनसे अधिक, मैं भी मसीह का सेवक हूं। In what way? किस तरीके से? More labor, more imprisonment, beaten more often than them, often in danger of death. अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, some of you think you're very spiritual, perhaps. आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि आप बहुत आत्मिक हो। Why? क्यों? Because you can sing well, क्योंकि आप अच्छा गाना गा सकते हो, or you can preach well, या आप अच्छा प्रचार कर सकते हो, or you're an elder with 40, 50, 60, 100 people in your church. या आप एक प्राचीन हो और आपके कलीसिया में 40, 50, 60, 100 लोग आते हैं। Are these the things you boast in? क्या ये वो चीजें हैं जिनमें आप घमंड करते हो? Please compare yourself with, or maybe you boast that you travel to other places also to encourage some of the other churches in your locality. या आप इस बात में घमंड करते हो कि आप अलग अलग जगहों पर सफर करके आपके आसपास की दूसरी कलीसियाओं को प्रोत्साहित करते हो। Or maybe you know the Bible so well that you consider yourself to be a great Bible teacher or a prophet. या आप बाइबल को इतना अच्छे से जानते हो कि आपको लगता है कि आप एक महान बाइबल के प्रचारक हो या भविष्यद्वक्ता हो। Okay, let us compare ourselves with Paul. आइए हम अपनी तुलना पौलुस से करें। He says, I have been
imprisoned more than all of you. और वो कहता है मैं आप सबसे ज्यादा बार कैद खाने में बंद हुआ। Verse 23, I have been beaten more often than you. 23 वचन, आपसे ज्यादा बार मैंने कोड़े खाए हैं। I have often been in danger of death in my serving the Lord. और प्रभु की मेरी सेवकाई में मैं कई बार मृत्यु के जोखिम में रहा हूं। Now, often in danger of death, not just once or twice. और कई बार मृत्यु के जोखिम में, ये नहीं कि कभी कभार। And because I preached the gospel, verse 24, 5 times I got 39 lashes. और क्योंकि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, 24 वचन कहता है 5 बार मैंने 39 कोड़े खाए हैं। He's showing us what type of servant of God he was. और वो हमें दिखा रहा है कि किस प्रकार का परमेश्वर का दास वो था। He was beaten more than others. वो दूसरों से ज्यादा मार उसने खाया था। That was his glory. ये उसकी महिमा थी That he is beaten more than others and in prison more than others. कि दूसरों से ज्यादा उसने मार खाया है, दूसरों से ज्यादा वो बंदीगृह में रहा है। And he says further in verse 25, I was beaten with rods 3 times. आगे वो 25 वचन में कहता है 3 बार मैंने बेते खाई, मतलब लोहे की छड़ी से मैंने मार खाया है। Once I was stoned and he almost died. एक बार मुझ पर पथराव हुआ और लगभग उसकी मृत्यु ही हो गई। And then he says 3 times I was shipwrecked. और फिर वो कहता है 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। See, he traveled in a ship to preach the gospel, not to make money. और वो उस जहाज में जाता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं। Today we don't travel in ships. आज हम जहाज में नहीं जाते, We travel in planes and buses. और हम एरोप्लेन्स में या बस में सफर करते हैं। So imagine if you said something like this. कल्पना करके देखिए कि पौलुस अगर ऐसा कुछ कहता तो। 3 times I had a car accident while I went to preach the gospel. और वो कहता कि 3 बार मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया जब मैं प्रचार करने गया था। Or 3 times my plane crashed where I went to preach the gospel. या 3 बार मेरा हवाई जहाज क्रैश हो गया जब मैं सुसमाचार प्रचार करने गया। And once I was thrown out in the ocean, verse 25, and a whole night and a day I was in the ocean, swimming, struggling for my life. 25 वचन के अंतिम भाग में एक बार मैं समुद्र में फेंक दिया गया था जहाज टूटने की वजह से, और एक रात मैंने समुद्र में ही काटा था अपना जीवन बचाने के संघर्ष में तैरते हुए। Imagine being 12 hours in an ocean and struggling for life. कल्पना करके देखिए कि 12 घंटे किसी महासमुद्र में आप फंसे हो, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हो। My dear brothers, I'm reading this to you to show you the things that we complain about are so foolish and stupid compared to Paul's life. मेरे भाई और बहनों, मैं ये सारी चीजें आपके लिए इसलिए पढ़ रहा हूं कि जिन बातों की शिकायत हम अपने जीवन में करते हैं वो ऐसी छोटी और मामूली सी है, मूर्ख है पौलुस के जीवन में जो हुआ उसकी तुलना में। Anytime I think that I'm serving the Lord, I read this passage. जब कभी मुझे लगता है कि मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, मैं इस संदेश को पढ़ता हूं, इस वचन को पढ़ता हूं। A lot of people praise me as a servant of the Lord. कई लोग मेरी स्तुति करते हैं कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं इसलिए। I go to this passage and say, Lord, I know what I am, and I compare myself to Paul. मैं इस वचन को पढ़ता हूं और कहता हूं, प्रभु मैं जानता हूं मैं क्या हूं, जब मैं तुलना अपनी पौलुस से करता हूं तो। I read this list and I have not experienced even one of those things. और मैं जब इस सूची को पढ़ता हूं इसमें से एक चीज का भी अनुभव मैंने नहीं किया है। I say, where am I compared to this mighty servant of God? और मैं कहता हूं इस परमेश्वर के महान सेवक की तुलना में मैं हूं ही कहां। I'm reading this to you, dear brothers, because it's very easy for us when we do a little bit of service for the Lord to think that we are very great servants of God. मैं आपके लिए ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हम जब प्रभु के लिए छोटी सी सेवकाई करते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है सोचना कि हम परमेश्वर के महान सेवक हैं। And the great danger there is that when we get puffed up, God's grace is withdrawn from us. और बड़ा धोखा तब ये होता है जब हम घमंड से फूल जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर हो जाता है। Now, we would think that
all this is enough suffering. और हम सबको लगेगा ये सब तो पर्याप्त है पीड़ा के तौर पर। No, he says, I've got some more things to boast about. वो कहता है नहीं नहीं, और कुछ चीजें हैं जिसमें मैं बढ़ाई करना चाहता हूँ। I've been in so many, verse 26, dangers from rivers, dangers from robbers, dangers in the country, dangers from the Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers in the sea, and dangers among false brethren, verse 26. 26 वचन वो कहता है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। Paul is writing inspired by the Holy Spirit. This is not empty boasting. अब पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिख रहा है, ये नहीं कि खाली में वो ऐसे ही ढींग मार रहा है। Because these Corinthians did not think much about Paul. The Corinthians were very clever people and says Paul is not such a great preacher. क्योंकि ये कुरिन्थियों के जो लोग थे, ये पौलुस को तुच्छ जानते थे, वो खुद बहुत बुद्धिमान थे और उनको लगता था कि पौलुस कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। If Paul was standing here in the pulpit, अब आज यहाँ पुलपिट पे अगर पौलुस खड़ा होता, you'll have to lower the mic so much because he was less than 5 feet in height. आपको माइक इतना नीचे करना पड़ता क्योंकि 5 फुट से भी नीचे उसका कद था। How many of you men are less than 5 feet in height? आप में से कितने ऐसे पुरुष हो जो 5 फीट से कम हो? Probably nobody. शायद कोई भी नहीं। Paul was a very short man. पौलुस एक बहुत ही छोटे कद का व्यक्ति था। Very, very small. बहुत ही छोटा। And he was bald. और वो गंजा था। And he had a hooked nose. और उसका नाक टेढ़ा था। He was not an impressive personality like some film star. बड़ा प्रभावशाली सा व्यक्तित्व किसी चलचित्र के अभिनेता के समान उसका नहीं था। Why did God make his greatest servant so ugly looking? अब क्यों परमेश्वर ने अपने सबसे महान सेवक को इतना अजीब दिखने वाला या बुरा दिखने वाला बनाया? Because he said this man is going to show the glory of Christ, not the glory of Paul. क्योंकि प्रभु ने कहा ये व्यक्ति मसीह की महिमा को, ना कि पौलुस की महिमा को प्रदर्शित करने वाला है। And that is a challenge that comes to me. I'm not to show how wonderful Zach Poonen is, but to show how beautiful Jesus is. और यही चुनौती मेरे पास आती है। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैं ये प्रदर्शित करूँ कि जैक पूरन कितना सुंदर है। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि ये प्रदर्शित कर पाऊँ कि यीशु कितना सुंदर है। Not how clever Zach Poonen is, but how glorious Jesus Christ is. ये नहीं कि जैक पूरन कितना चतुर, कितना बुद्धिमान है, बल्कि ये कि मसीह यीशु कितना महिमामय है। So many preachers today are comparing themselves with other preachers and thinking they are better or they have done more for the Lord. और आज कई प्रचारक हैं जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उन्हें लगता है कि वो बेहतर है, उन्होंने प्रभु के लिए बड़ी-बड़ी चीजें की हैं। Or you look at your church and you compare yourself with other church and you think yours is better. या आप अपनी कलीसिया की तुलना किसी और कलीसिया से करते हैं और आपको लगता है कि आपकी कलीसिया बेहतर है। There's so much of pride in us that we don't even see. हमारे अंदर इतना घमंड है जो हम देख भी नहीं पाते। We really need to learn how to humble ourselves. हमें वाकई ये सीखने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को कैसे नम्र करें। I've been a Christian for 66 years. 66 वर्षों से मैं एक मसीही रहा हूं। And I'll tell you honestly, my greatest pursuit is not to be a better preacher, but to be more humble like Jesus Christ. और मैं आपको बताना चाहता हूं ईमानदारी से कि मेरी सबसे बड़ी चाहत या खोज ये नहीं है कि मैं महान प्रचारक बनूं, बल्कि मैं अधिक और अधिक मसीह जैसा बनूं। Dear brothers and sisters, don't seek to be great preachers or great in any way in the world. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसकी खोज ना करें कि आप महान प्रचारक बनो या इस संसार में किसी तरीके से महान बनो, Or great in the church. या कलीसिया में महान बनने की चाहत न रखें। One passion in life must be, I want to be like little more like Jesus every day. और आपके जीवन का एक मात्र ध्येय और लालसा यही होनी चाहिए कि प्रतिदिन कुछ और मात्रा में मैं मसीह जैसा बनना चाहता हूं। I want to be more pure in my thinking. मैं अपने विचारों में और थोड़ा शुद्ध होना चाहता हूं। I want to have more control over my tongue. मैं चाहता हूं कि अपने जबान पर थोड़ा और काबू में पाऊं। I want to have more compassion in my heart
for the poor and weak brothers in my churches. मेरे कलीसिया के जो गरीब और निर्बल भाई हैं उनके लिए थोड़ा और तरस मेरे मन में आए। I want to have a little more thinking about how I can help some brother or sister in our churches. मैं चाहता हूं कि प्रतिदिन मैं थोड़ा और सोच पाऊं कि हमारे कलीसिया के भाई बहनों की मैं सहायता कैसे करूं। And I want to see where I'm coming short of Christ likeness. और मुझे ये देखना होगा कि कहां मैं मसीह जैसे बनने में कम पड़ रहा हूं। So every day when I get up in the morning, और इसलिए प्रतिदिन जब मैं सुबह उठता हूं, before I get out of bed, मैं बिस्तर से बाहर निकलने से पहले I pray to the Lord and I worship God. मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, उसकी आराधना करता हूं And I say, fill me with the Holy Spirit. और मैं कहता हूं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। I want to be a little more like Jesus Christ today. मैं थोड़ा और प्रभु यीशु मसीह जैसा आज बनना चाहता हूं, Little more than yesterday. कल से थोड़ा अधिक मात्रा में। Will you pray that prayer in क्या future आप- when you get up in the morning? क्या आप ये प्रार्थना प्रतिदिन करोगे क्या जब आप सुबह उठोगे? Right from tomorrow onwards. कल से शुरू करके Before you get out of your bed, अपने बिस्तर से निकलने से पहले, as soon as your eyes are open, जैसे ही आपकी आंखें खुलती है, before you get out of bed, अपने बिस्तर से निकलने से भी पहले look up ऊपर देखिए, and say, Heavenly Father, कहिए स्वर्गीय पिता, thank you that you're my daddy. धन्यवाद कि तू मेरा पापा है। I want you to fill me with the Holy Spirit today. मैं चाहता हूं कि आज तू मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर, Make me more like Jesus मुझे और थोड़ा यीशु जैसा बना and make me a bold witness for you. और तेरे लिए एक निडर ऐसा गवाह बना। I'm not seeking anything in the world. मैं इस संसार में और कोई चीज की खोज नहीं कर रहा, Just give me enough money to take care of myself and my family. That is enough. मुझे केवल पर्याप्त उतना ही पैसा चाहिए जो मेरे लिए और मेरे परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त हो, उससे वो पर्याप्त है। I don't want to live a very luxurious life. मैं बड़े ऐशो आराम का जीवन नहीं जीना चाहता, I want to live a simple life like Jesus lived. मैं यीशु की तरह एक साधारण सा जीवन जीना चाहता हूं, But I want to be a bold witness for Jesus Christ. पर एक हियाव भरा निडर गवाह मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहता हूं। I want the light of Christ to shine through me today. मैं चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु की ज्योति मुझसे चमके। And if there's somebody I should speak to about Jesus today, please bring me in touch with them and give me the words to speak. और अगर कोई है जिससे आज मुझे यीशु के बारे में कुछ कहना है तो उन्हें मेरे संपर्क में लाना प्रभु, और मुझे शब्द देना कि मैं उनसे कह पाऊं। Your life will change completely if you start every day like that. आपका जीवन संपूर्ण तौर पर बदल जाएगा अगर आप प्रतिदिन ऐसी शुरुआत करो तो। You may not become the most famous Christian in the world, शायद आप इस संसार के सबसे जाने माने लोकप्रिय मसीह ना बनो, but you'll have great joy when Christ comes back. पर आपको बड़ा आनंद होगा जब मसीह लौट कर आएगा। Let me tell you some more things that Paul went through. मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं जिसको पौलुस ने सामना किया। I'm mentioning this because so many Christians are boasting nowadays of many preachers are boasting about many earthly things. और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कई मसीही और कई प्रचारक भी कई पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं के विषय में बढ़ाई करते हैं। So here he says in verse 27, यहाँ 27 वचन में पौलुस कहता है, I've been through many sleepless nights. मैं कई बार जागते जागते मतलब बिना नींद का मैंने रात काटा है। No, there are many people who go through sleepless nights in order to make money. अब कई लोग बिना नींद के पूरे रात भर जगते हैं पैसा कमाने के लिए, But he went through sleepless nights because he was praying for people. पर वो इसलिए बिना नींद का पूरा रात काटता था क्योंकि वो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। Or he was carrying a burden for some church in the middle of the night and he couldn't get sleep. क्योंकि रात के बीच में किसी कलीसिया के लिए एक ऐसा बोझ उस पर आता था कि वो सो नहीं पाता था। Or he was thinking about how to help some brother in the church who was in need and thinking about that, he couldn't sleep. और फिर वो अचानक सोचता था किसी भाई के बारे में कलीसिया में जो जरूरतमंद था और उसी के बारे में सोचकर कैसे सहायता करे, वो नींद में वो सो नहीं पाता था। Not one night, it says here many sleepless nights. और एक रात की बात नहीं है, कई बार उसने बिना नींद की रात काटी है।
And he says, I was often in hunger and thirst. और वो कहता है कई बार भूख और प्यास में मैंने दिन काटा है। That means some places where he went to preach the gospel, he could not get enough food to eat and not even water to drink sometimes. और कभी कभी जहां वो प्रचार करने जाता था सुसमाचार का, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था खाने के लिए, कभी कभी पीने के लिए पर्याप्त पानी तक उसे नहीं मिलता था। And verse 27, last part, often without food. 27 वचन अंतिम भाग वो कहता है कई बार उपवास करने में। He's not saying I missed one meal because I had to preach the gospel. वो ये नहीं कह रहा कि मैंने एक बार का खाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को सुसमाचार प्रचार करना था। Often वो कह रहा I है, could not have food because I was preaching the gospel. वो कहता है बार बार मैं खाना नहीं खा पाता था क्योंकि मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था। And I was often in cold where I did not have warm clothing to cover me. और कई कई बार मैं जाड़े में मतलब ठंड में रहा था जहां मेरे पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे खुद को ढकने के लिए। Okay, this is a big list of all these physical sufferings Paul had. ये बड़ी सूची है सारी शारीरिक समस्याओं की जिनका सामना पौलुस ने किया। And then he says, I'll tell you the biggest burden I had, more than all these things that I've listed. और फिर वो कहता है अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा बोझ जो मेरा है, जो भी मैंने अब तक कहा उससे भी बड़ा। Verse 28. 28 वचन, Apart from these external things, the daily pressure of concern for all the churches. और सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। Every day, प्रतिदिन he had a burden in his heart. Burden. उसके हृदय में एक बोझ होता, बोझ। And what was he thinking about in his heart? और वो अपने हृदय में किस बारे में सोच रहा होगा? This church in Philippi फिलिपियुस की ये कलीसिया and this other church in Corinth, और कुरिन्थ में ये दूसरी कलीसिया, this church in Antioch, और अंतियोक में ये कलीसिया, this church in Ephesus. इफिसुस की ये कलीसिया। I wonder how it's going. और मैं नहीं जानता कैसे उनका चल रहा होगा। And I see that my co-worker Demas is slowly started backsliding. और मेरा जो सहकर्मी देमास है धीरे पीछे फिसलना उसने शुरू कर दिया है। And I want to encourage my young co-worker Timothy. और मैं अपना जो जवान सहकर्मी तिमुथियुस है उसे प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। And Titus and Silas. और तीतुस और सिलास इनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। This is what was in Paul's heart all the time. और निरंतर पौलुस के हृदय में ये सब होता था। He was not checking his bank account all the time to see how much money there is. वो निरंतर अपने बैंक खाते को नहीं जांच रहा था कि कितना पैसा उसके पास बन गया है। He knew one thing. वो एक चीज जानता था, If I seek the kingdom of God first and his righteousness, everything that I need will be added to me. अगर मैं पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करूं तो जो भी मेरी आवश्यकता है वो मेरे लिए जोड़ दिया जाएगा। I have proved that for 60 years in my life. और मेरे जीवन के 60 वर्षों में मैंने इसे साबित किया है। I have not lived on a salary. मैंने कभी कोई तनख्वाह लेकर जीवन नहीं जिया। I have never taken money from any church. मैंने किसी कलीसिया से पैसा नहीं लिया। But God has taken care of me and my family. पर प्रभु ने मेरी और मेरे परिवार की सहायता की है। I don't have a car. मेरे पास कार नहीं है। I'm one of the very few people in America who don't have a car. मैं अमेरिका में बहुत ही कम लोगों में से एक हूं जिनके पास अपनी कार नहीं है। And that's not the big thing in life. और ये जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। Yeah, other brothers help me. हाँ, बाकी भाई मेरी सहायता करते हैं। And we live very simply, my wife and I. और हम बड़े सादगी से जीवन जीते हैं, मैं और मेरी पत्नी। I don't think anybody lives as simple as we do. मुझे नहीं लगता कि और कोई होगा जो हमारे इतना सादगी से जीवन जीता होगा। And that's how we lived even when we brought up our children. और जब हमने अपने बच्चों की परवरिश की तब भी हम ऐसे ही जीते थे। We never took our children even once in our life to a restaurant. और हमारे जीवन भर में एक बार भी हम अपने बच्चों को किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं ले गए। We never took our children even once in our life for some vacation to visit some part of India or any other country. जीवन भर में एक बार भी हम अपने बच्चों को कहीं भारत में कोई छुट्टी मनाने या ये देखने वो देखने नहीं ले गए। We didn't have the money. हमारे पास पैसा ही नहीं था। But
we brought up our children to read the Bible and to follow the Lord. पर हमने अपने बच्चों की परवरिश की कि वो बाइबल को पढ़े और प्रभु का अनुसरण करे And to respect all people और वे सब लोगों का आदर करे and to respect even poor people. और गरीब लोगों का भी वे आदर करें। These are the things we should seek to teach our families. और ये वो चीजें हैं जिसकी हमें खोज करनी है अपने परिवार को सिखाना। And if we are a witness for Christ like that, सॉरी अंकल, कैन यू रिपीट? if we are witnesses for Christ like that, और अगर हम मसीह के लिए इस प्रकार के गवाह होंगे तो, even if you don't bring hundreds of people to Christ, और अगर आप मसीह के प्रति 100 लोगों को नहीं भी ला पाए फिर भी, even if you don't build a big church, अगर आप एक बड़ी कलीसिया न बना पाए फिर भी, even if you don't travel to many places, अगर आप कई जगहों पर सफर ना करें फिर भी, you'll be able to come to the end of your life and say, I have finished the work God gave me to do. आप अपने जीवन के अंत में आ पाओगे और कह पाओगे कि मैंने उस काम को खत्म किया है जो प्रभु ने मुझे दिया था करने को। I want to say to all of you, please be sure, first of all, that you are really a child of God. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप परमेश्वर की संतान हो। I struggled from the age of 13 to 19, always wondering, am I really a child of God or not, for 6 years. और 13 से लेकर 19 की उम्र में मैं बहुत संघर्ष करता था कि मैं वाकई परमेश्वर की संतान हूं कि नहीं, 6 वर्षों के लिए। And all those years I never grew spiritually. और इन सारे वर्षों में मैंने कभी आत्मिक तौर पर उन्नति नहीं की। But one day, I had the habit of reading the Bible every day, which is a good habit. और मेरी एक आदत थी कि मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता था। I want to encourage all of you to develop that habit. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Read at least a few verses of the Bible every day. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी बाइबल को पढ़िए, कुछ वचन बाइबल के प्रतिदिन पढ़िए। If you forget it early in the morning, sometime during the day, read it. और अगर सुबह आप भूल जाते हो तो दिन भर में कभी ना कभी पढ़िए। Many of you got it on your phone. You can read it anywhere. और कई लोगों के पास अपने फोन में है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। I used to carry a small New Testament in my pocket even when I travel in the bus or train in those days. उन दिनों जब मैं बस या ट्रेन में सफर करता था तो मैं अपने जेब में एक पॉकेट न्यू टेस्टामेंट लेकर जाता था। And so while I'm traveling, I would read it. और जब मैं सफर कर रहा होता तब भी मैं उसे पढ़ता। That is how I came to know the Bible. इसी तरीके से मैंने बाइबल को जाना। And one day I read John 6:37, एक दिन मैंने यूहन्ना 6:37 पढ़ा, where the Lord says, those who come to me, I will never cast out. और जहां प्रभु कहता है कि जो मेरे पास आएंगे मैं उसे कभी ना निकालूंगा। And somehow that word hit me in my heart. और अचानक से वो वचन मेरे हृदय में मुझे आ पहुंचा, वो बहुत मुझे प्रोत्साहित किया। I said, Lord, for the last 6 years, I've come to you at least 100 times. और मैंने कहा, प्रभु पिछले 6 वर्षों में कम से कम 100 बार मैं तेरे पास आया हूंगा। I've asked you to come into my heart. और मैंने तुझसे मांगा है कि तू मेरे हृदय में आ जा। And from that verse, the Lord said, I did not cast you out. और उस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की कि मैंने तुम्हें नहीं निकाला। So I said, thank you, Lord. Today I believe that. और मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, आज मैं इस पर विश्वास करता हूँ। That was 66 years ago. ये 66 वर्षों पहले की बात है। I was 19 years old. मैं 19 वर्ष का था। Nearly 20. लगभग 20 वर्ष का। And all these 66 years, I never doubted my salvation after that. और उसके बाद आज तक के 66 वर्षों में मैंने कभी अपने उद्धार पर कोई शक या संदेह नहीं किया है। You must come to that place definitely, that surely you believe that Jesus Christ has accepted you. आपको उस स्थान पर निश्चित तौर पर आना है कि निश्चित तौर पर यीशु ने आपको स्वीकार किया है। It says here, read this verse. If you come to me, I will not cast you out. इस वचन को पढ़िए, वो लिखता है कि अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसे अपने आप से न निकालूंगा। Is there any young child here who came to Jesus? क्या यहाँ कोई जवान बच्चा है क्या जो यीशु के पास आया है? I want to speak to your children. मैं आप बच्चों से बात करना चाहता हूँ। Have you asked the Lord Jesus to come into your heart? क्या आपने प्रभु यीशु से कहा है कि वो आपके हृदय में आ जाए? I want to tell you, he did not cast you out. He has accepted you. मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि उसने आपको नहीं निकाला, उसने आपको स्वीकार किया है। He heard your prayer. उसने आपकी प्रार्थना सुन ली। He came into your heart. वो आपके हृदय में आ चुका। Believe him. उस पर विश्वास कीजिए। If you don't believe, then you begin to drift. अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आप भटकना शुरू कर दोगे। So that is the first thing you need to learn, to be absolutely sure Christ has forgiven me.
ये पहली चीज है जो आपको सीखने की आवश्यकता है कि आप बिल्कुल आश्वासित रहो कि प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। But after that, I did not suddenly become perfect. पर उसके बाद अचानक से मैं सिद्ध नहीं बन गया। After 66 years, I'm still not like Jesus Christ. 66 वर्ष हो गए पर अब भी मैं मसीह जैसा नहीं हूं। I'm a little more like Christ today than I was 66 years ago. और 66 वर्षों पहले जितना मैं था उससे थोड़ा अधिक आज मैं हूं। But when I see the glory of Christ, I see how far I am from likeness to Him. पर जब मैं यीशु की महिमा देखता हूं, मैं देखता हूं कि उसके स्वरूप से मैं कितना दूर हूं। And every day, I bury my hand in my face in my hand and say, Lord, I'm not like you. I want to be like you. और प्रतिदिन मैं अपने सिर को अपने हाथ में रख कर कहता हूं, प्रभु मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मुझे और तेरे जैसा बनना है। My great desire is not to be a great preacher, but to be more like Jesus Christ. मेरी महान चाहत ये नहीं है कि मैं महान प्रचारक बनूं, बल्कि मैं और थोड़ा यीशु जैसा, यीशु के समान बन जाऊं। Make that your goal in life. आपने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना दीजिए। Some of you are elders of churches. आप में से कुछ वहां कलीसियाओं के प्राचीन हो। What is your ambition? आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? To be a powerful preacher? क्या आप एक सामर्थ भरे प्रचारक होना चाहते हो? Forget it. भूल जाइए। Bury that desire today. उस इच्छा को आज ही गाड़ दीजिए। Say, Lord, from today my desire is that I'll be little more like Jesus. और कहिए, प्रभु आज से मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा और यीशु जैसा बनूं। When I was young, I had a desire to be a great preacher. जब मैं जवान था तो मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं एक महान प्रचारक बनूं। And God had given me a gift when I was 23 years old. और परमेश्वर ने मुझे एक वरदान दिया था जब मैं 23 वर्ष का था। I was preaching to 5,000 people when I was 23 years old. जब मैं 23 ही वर्ष का था तो 5,000 लोगों की भीड़ के सामने मैं प्रचार किया करता था। But God said, forget it. पर प्रभु ने कहा इसे भूल जाओ। And I stopped going after being a big preacher. और एक बड़ा प्रचारक बनने की खोज या उसे मैंने छोड़ दिया। And many people couldn't understand me. कई लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे। I started meeting in my house with 2 families and I stopped traveling to preach. मैं अपने घर में 2 ही परिवारों के साथ मिलना शुरू कर दिया। मैंने सफर करना प्रचार के लिए बंद कर दिया। My father was a God-fearing believer and he told me, what happened? मेरे पिता एक परमेश्वर का भय मानने वाले विश्वासी थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ? You were traveling all over the world preaching. What happened? Now you're sitting at home with 10 people in the church, in your home. संसार भर तुम सफर करते थे, प्रचार करते फिरते थे, आज तुम घर में 10 लोगों को लेके बैठे हो। I told my father, Dad, I'm not called to be a great preacher. मैंने अपने पिता से कहा, पापा मुझे एक महान प्रचारक बनने की बुलाहट नहीं है। That is not my calling. वो मेरी बुलाहट नहीं है। I want to build the church of Jesus Christ. Even if it's only 10 people, I'll build that. मैं मसीह की कलीसिया बनाना चाहता हूं। अगर केवल 10 लोग हैं फिर भी मैं उस कलीसिया को बनाऊंगा। I want to build people like a body. मैं लोगों को एक शरीर के रूप में बनाना चाहता हूं। I have no desire that these 10 people should now become 100 people or 1,000 people. मेरे अंदर कोई चाहत नहीं है कि ये 10 लोग अब 100 लोग बन जाए या 1000 लोग बन जाए। So I said, Lord, these few people are meeting in my house. Let me make them into one body. और मैंने कहा, प्रभु ये 10 लोग मेरे घर में मिल रहे हैं, मैं उनको एक शरीर के तौर पे बनाना चाहता हूं। That we function together, love one another. कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक साथ हम कार्य करते हैं। So that not that after 10 years we don't glory, oh, we have become 100 people. कि ये नहीं कि 10 साल बाद हम महिमा करें कि देखो अब हम 100 लोग बन गए हैं। Maybe after 10 years we are still 10 people, but we are functioning as a body now. शायद 10 साल के बाद हम 10 ही लोग रहे, पर आज हम एक शरीर की तरह काम करना शुरू कर दिया है। My goal became quality, not quantity. और मेरा लक्ष्य उसके बाद गुणवत्ता बन गया, संख्या नहीं। See, many churches there are so many members, but they are not working together like a body. और कई कलीसियाओं में इतने सारे लोग तो है, पर वे एक शरीर बनकर काम नहीं कर रहे। Old Testament they had a big group, 2 million people, it was a congregation. पुराने नियम में उनके पास एक बड़ा झुंड होता था, 2 लाख लोगों का। वो एक मंडली, एक कांग्रेगेशन, लोगों का झुंड था केवल। 20 lakhs of people. 20 लाख लोग। What a big church that was. कितनी बड़ी कलीसिया वो था। But they were all fighting with each other and God was very unhappy with them. पर वे सब एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। परमेश्वर उनसे बहुत ज्यादा नाखुश था।
There are many churches like that today also, very big churches, but God is unhappy with them. और आज भी ऐसे कई कलीसियाएं, बहुत बड़ी कलीसिया है, पर प्रभु उनसे नाखुश है। But then he finds some other place there are only 10 people, but they are working together like a body. पर फिर प्रभु किसी और जगह देखता है 10 ही लोग हैं, पर वे एक शरीर बनकर काम कर रहे हैं। They don't fight with each other. वे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, They don't speak against each other. वे एक दूसरे से बात नहीं करते, They don't sit at home and gossip about others. वे घर पर बैठकर दूसरों से चुगली नहीं करते, The families, husbands or wives are not fighting with each other. और परिवार में पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। And their children all growing up in a God-fearing way. उनके बच्चे ईश्वरीय तरीके से बड़े हो रहे हैं, Their children are a testimony for Christ in the school. और उनके बच्चे स्कूल में एक गवाह बन रहे हैं। And the fathers in these homes don't make a lot of money, but they are very faithful to the Lord. और इन घर में जो पिता है वो बहुत पैसा नहीं कमाते, पर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। That is a real church. ये एक सच्ची कलीसिया है। Maybe 10, 20, 30 people. शायद 10, 20, 30 लोग, And the Lord says, I'm happy with that church. और परमेश्वर कहता है मैं उस कलीसिया से खुश हूँ। And he can look at another church with 500, 600 people and he says, I'm not so happy with that. और हम दूसरे किसी कलीसिया को प्रभु दूसरे किसी कलीसिया को देख सकता है शायद जिसमें 500-600 लोग हैं, वो कहेगा मैं इससे खुश नहीं हूँ। See, dear brothers and sisters, we must see what God values, not what men value. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उसे देखना है जो जिसका मूल्य परमेश्वर करता है, वो नहीं जिसकी मूल्य लोग करते हैं। Let me turn to 1 John chapter 2. मैं निकालना चाहता हूँ पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। First of all, 1 John chapter 1, सबसे पहले पहला यूहन्ना पहला अध्याय verse 7. 7वां वचन। If we walk in the light as God is in the light, we have fellowship with God, and the blood of Jesus cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। That is chapter 1, verse 7. 1 यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। What do you have to do? आपको क्या करना है? Walk in the light. आपको ज्योति में चलना है। That is the easiest thing even for a little child to do. ये सबसे आसान चीज है जो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। You know what it means? क्या आप जानते हो इसका मतलब क्या है? It means be absolutely honest. इसका मतलब है कि बिल्कुल ईमानदार बने। Even when a child does not know what 2 plus 2 is, जब एक बच्चा ये भी नहीं जानता कि 2 में 2 मिलाना क्या होता है, he can be honest. वो ईमानदार तो हो सकता है। One of the first lessons I taught my 4 children was to always speak the truth. मेरे चारों बेटों को जो मैंने पाठ सबसे पहले जो पाठ पढ़ा उनमें से एक ये था कि हमेशा सच कहो। Even when they were 1.5 years old, जब वे 1.5 साल के थे तब भी ask them, did you do this? मैं उनसे पूछता था क्या तुमने ये किया? I know he did it, but he tells me no. मैं जानता हूं उसने किया है, पर वो मुझसे नहीं कहता है। And I'll say, no, I didn't do it. और वो कहेगा I'll नहीं, ask him, tell me, half an hour I sit with him, tell me the truth, tell me the truth. और वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया। फिर मैं फिर पूछता था, आधा घंटा उसके साथ बैठता था, सच बताओ सच बताओ सच बताओ। Finally he cries and says, yes, daddy, I did it. आखिरकार वो रोता था और कहता था हाँ पापा मैंने कर दिया। I say, I won't punish you. और मैंने कहा मैं अब तुम्हें दंड नहीं दूंगा। I will never punish you if you tell me the truth. अगर तुम मुझे सच कहोगे मैं कभी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। Even if you break the most valuable thing in my house, I will not punish you. मेरे घर में सबसे मूल्यवान कीमती चीज तुम तोड़ क्यों ना दो, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। Even if you do something terrible and lose your books in school or anything, तुम कुछ बहुत बदतर कर दो, तुम्हारे स्कूल में सारे तुम्हारे किताबें खो जाए, कुछ भी क्यों ना हो, I only want you to be honest. मैं केवल यही चाहता हूं कि तुम ईमानदार बनो। Just tell me the truth always. केवल मुझे आकर हमेशा सच कहो। I'll forgive you whatever you did wrong. जो भी तुमने गलत किया मैं उसे क्षमा कर दूंगा। That is where I taught them the most important thing in life, which is speak the truth. और वहां मैंने उन्हें सिखाया सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन में यह है कि आप सच कहो। Are you teaching your children that? क्या आप अपने बच्चों को यह सिखा रहे हो? Start when they are 1 year old. जब वे 1 वर्ष के हैं तब शुरू कीजिए। The other thing is teach them to obey. When daddy or mommy says something, do it. दूसरी चीज उन्हें सिखाइए आज्ञा मानना। जब माता पिता कुछ करने को कहते हैं करना है। That is the meaning of walking in the light. यही मतलब है ज्योति में चलने का। It doesn't mean I'm perfect. इसका यह मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हूं। It means I'm honest. इसका मतलब यह है कि मैं ईमानदार हूं।
When you shone a light on something, it reveals it. जब आप किसी चीज पर ज्योति डालते हो तो वो चीज प्रकट हो जाती है, उजागर होती है। See, if there is some dirt on my shirt, अगर मेरे शर्ट पर कोई गंदगी है तो then I don't like to come into the light. I like to be in the dark so nobody can see them. फिर मुझे नहीं पसंद होगा ज्योति में आना, मैं चाहूंगा कि मैं अंधकार में छिपा रहूं ताकि कोई देख नहीं पाए। It's like that. If there's something wrong in my inner life also, I like to hide in the darkness. बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ अंदरूनी जीवन में अगर मेरे पास कुछ गंदा है छिपाने जैसा, तो मैं अंधकार में छिपना चाहता हूं। Then you can't have fellowship with God. अगर ऐसा है तो आप पिता के साथ संगति नहीं कर पाओगे। See, like I as an earthly father told my children, क्यों मैं एक पृथ्वी का पिता होने के नाते मैंने अपने बच्चों से कहा, I'm perfectly happy with you if you tell me the truth, even if you did 10 or 100 things wrong. मैं बिल्कुल खुश हूं तुम्हारे साथ अगर तुम मुझसे सत्य कहोगे, चाहे तुमने 10 चीजें गलत की या 100 चीजें गलत की, कोई बात नहीं। That's what the Lord says to us. और प्रभु हमसे यही कहता है, I don't care how many wrong things you did. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गलत बातें आपने की। Walk in the light, 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7 ज्योति में चलिए, That's all. बस उतना ही। They don't have 25 conditions for fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति करने की 25 शर्तें नहीं लिखी है, One condition. एक ही शर्त है, If we walk in the light, we can have fellowship with God यदि हम ज्योति में चले तो पिता के साथ हमारी संगति होगी, and with Jesus और यीशु के साथ भी, and with one another. और एक दूसरे के साथ भी। So what is the number one and only requirement for fellowship? और सबसे पहली और इकलौती शर्त क्या है संगति की? You don't have to be perfect, but you have to be honest. आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं, आपको ईमानदार होना है। Perfect, I'm also not perfect, सिद्ध मैं भी नहीं हूं, but I can be honest. पर मैं ईमानदार हो सकता हूं। And that little child sitting there, who's only 5 years old, he can be honest. और वो छोटा बच्चा जो वहां बैठा है वो ईमानदार हो सकता है। So, dear brothers and sisters, please seek to be honest with God from today. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से खोज करें कि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। You have to be honest with your parents. आपको अपने माता पिता के साथ ईमानदार होना है। Especially if you are a child, always be honest with your parents. विशेषकर अगर आप एक बच्चे हो तो हमेशा अपने माता पिता के साथ ईमानदार बने रहे, And be honest with God. और परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। And then you will grow little by little by little. फिर आप धीरे धीरे उन्नति करोगे। And that is what we must teach everybody in the church. और यही बात हमें कलीसिया में सबों को सिखानी है। If you did something wrong, confess it. अगर आपने कुछ गलत किया तो उसे मान लीजिए, And don't try to hide it. और उसे छिपाने की कोशिश ना करें। There are many things we have to hide from human beings, but don't hide anything from God. कई चीजें हमें मनुष्यों से छिपानी पड़ती है, पर अपने परमेश्वर से कुछ ना छिपाए। And the reason why many people don't have fellowship with God is because they try to hide something from Him. और क्या कारण है कि कई लोगों की परमेश्वर के साथ संगति नहीं है? क्योंकि वे कई चीजें उससे छिपाना चाह रहे हैं। And then once we have fellowship with God, और एक बार परमेश्वर के साथ हमारी संगति होती है तो then we go to 1 John 2 verse 6. फिर हम जाते हैं पहला यूहन्ना 2:6 में, That if you say we are in Christ, we must walk as He walked. अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं तो हमें वैसे ही चाल चलनी है जैसे वो चलता था। So the next thing we must do is we must study the life of Jesus and see how He lived so that we can live like Him. फिर अगली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हम यीशु के जीवन की मनन करें कि वो कैसे जीता था, ताकि हम वैसे जी पाए। Did Jesus have any interest in money, making money? क्या यीशु के पास कोई दिलचस्पी थी पैसा कमाने में? No. नहीं। He worked hard as a carpenter to earn enough because he had to support his mother and brothers and sisters. और एक बड़ाई होने के नाते उसने कड़ी मेहनत की, क्योंकि वो अपने माँ का, अपने भाई बहनों का आर्थिक समर्थन करना चाहता था। You know, Joseph had died और यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी। from the age of 18 to 30, 12 years. Jesus worked as a carpenter to support his family. 18 से लेकर 30 की उम्र तक 12 वर्ष यीशु ने काम किया एक बड़ाई के तौर पर अपने परिवार को उनका गुजारा करने के लिए। His widowed mother, 4 brothers and 2 sisters. उसकी विधवा माँ, उसके 4 भाई और 2 बहन। The 7 children Mary had. 7 बच्चे जो मरियम के थे। Jesus was the eldest. यीशु मसीह सबसे बड़ा था। And he worked hard as a carpenter to support his family. एक बड़ाई होने के नाते उसने कड़ी मेहनत की अपने परिवार का समर्थन करने के लिए, उनका सहायता करने के लिए। So he's an example for us. और वो हमारे लिए एक उदाहरण है। And you can think how he worked as a carpenter. He must have worked very, very hard. और आप सोच सकते हो कि उसने एक बड़ाई के तौर पर कैसे काम किया, कड़ी मेहनत उसने की होगी।
He had a bigger family than probably all of you. और आप सबसे शायद बड़ा परिवार उसका था। There were 7 members in his family. उसके परिवार में 7 लोग थे। How many of you have got 7 members in your family? आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में 7 लोग हैं? Mother plus 6 children, माँ और 6 बच्चे, and a widowed mother. और वो भी विधवा माँ। Any of you like that? क्या आप में से कोई ऐसा है क्या? With one widowed mother and 5 brothers and sisters, एक विधवा माँ और 5 भाई बहन और 6 6 brothers and sisters. भाई बहन? No, he had to support them. नहीं, उन्हें यीशु को उनका समर्थन करना था आर्थिक रूप से। There were, all these 7, including him, there were 8 people in that family. और यीशु को मिलाकर कुल मिलाकर 8 लोग थे उस परिवार के अंदर। And he worked like that for 12 years up to the age of 30. और 12 वर्ष तक, 30 की उम्र तक उसने ऐसे काम किया। And you know what the father's testimony was him about his life up to that time? और क्या आप जानते हो पिता की उसके जीवन के विषय में क्या गवाही थी उस समय के बाद? The father had watched him, how he provided for his family, how he worked as a carpenter. पिता ने उसे देखा था कैसे उसने अपने परिवार का समर्थन किया है, गुजारा निकाला है, और कैसे एक बढ़ाई के तौर पर काम किया है। Never preached one sermon. और एक प्रचार भी उसने कभी नहीं किया। And at Jesus' baptism, the father said, I am well pleased with my son. और फिर भी यीशु के बपतिस्मा में पिता ने कहा, मैं अपने बेटे से अति प्रसन्न हूँ। What had Jesus done that made the father say, I am well pleased? यीशु ने क्या ही किया था कि पिता कह सके मैं उससे अति प्रसन्न हूँ? He had only taken care of his family. उसने केवल अपने परिवार की देखभाल की थी। And worked honestly in his job. अपने नौकरी में ईमानदारी से काम किया था। So any of you who are working honestly in your job, taking care of your family, God can say, I'm well pleased with you. और आप में से कोई भी जो ईमानदारी से काम करता है, अपने परिवार की सहायता करता है, तो प्रभु आपके बारे में कहेगा कि वो आपसे अति प्रसन्न है। That is the most important thing as a Christian. ये मसीह होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण चीज है। Work hard and support your family. कड़ी मेहनत कीजिए, अपने परिवार का गुजारा कीजिए। In your work, be a faithful witness. और अपने काम की जगह एक विश्वास योग्य गवाह बनिए। Jesus was very faithful in the carpenter shop anyway. He never cheated anybody. यीशु बहुत विश्वास योग्य था उस बढ़ाई की दुकान में, उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। He helped the poor. वो गरीबों की सहायता करता था। He never fought with anybody. उसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। He never fought with his 4 brothers and 2 sisters. अपने 4 भाइयों 2 बहनों से उसने कभी लड़ाई नहीं की। That is to be a Christian witness. यही मतलब है एक मसीह गवाह होने का। So there may be more and more persecution in the days to come in North India. शायद आने वाले दिनों में अधिक और अधिक सताव होगा उत्तर भारत में। But let us be a good testimony in our home. पर आइए हम अपने परिवार में एक अच्छी गवाह बने। Even if you are not able to preach to big crowds. और अगर आप बड़े-बड़े भीड़ के सामने प्रचार न भी कर पाए फिर भी, you can be a faithful witness for Christ in your home. पर आप अपने घर में एक विश्वास योग्य मसीही बन पाए। And that will be enough. God will say, well done, good and faithful servant. और वो पर्याप्त होगा। परमेश्वर कहेगा, अच्छा तुमने अच्छा किया मेरे भले और विश्वास योग्य दास। And God will add to your number those whom he wants to bring to salvation. और परमेश्वर आपके मध्य में ऐसे लोगों को जोड़ेगा जिनको परमेश्वर चाहता है कि उद्धार हो। That is God's way. ये परमेश्वर का काम है। I cannot bring people to Christ. मैं लोगों को मसीह के पास नहीं ला सकता। I want you to see a verse in Acts chapter 2. मैं चाहता हूं कि आप एक वचन को देखिए, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। Those early Christians were very poor. जो पहले के मसीह थे वे बहुत गरीब थे। This is the beginning of the Christian church, Acts chapter 2. ये मसीह कलीसिया की शुरुआत है, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय। See how they lived. देखिए वो कैसे जीते थे। Verse 46. 46 वचन। Day by day they continued breaking bread from house to house, taking their food together with gladness and sincerity of heart. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। And they praised God. और वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। And they had a good testimony before the people. और लोगों के सामने उनकी अच्छी गवाही थी। And see the sentence, the last sentence. और 47 वचन का अंतिम भाग देखिए। The Lord added to their church every day those who were being saved. और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।
Who adds to the church? कौन कलीसिया में मिलाता है, जोड़ता है? The Lord adds to the church. प्रभु कलीसिया में जोड़ता है। In 50 years in CFC churches, I have learned that lesson. It is the Lord who adds to the church. 50 वर्षों में CFC कलीसियाओं में मैंने ये पाठ सीखा है कि प्रभु कलीसिया में जोड़ता है। I cannot add anybody. मैं किसी को नहीं जोड़ सकता, No matter how hard I preach or work, चाहे मैं कितना भी कड़ी मेहनत क्यों ना करूं, कितना ज्यादा प्रचार क्यों ना करूं। it is the Lord who adds to the church those who are saved. प्रभु ही है जो कलीसिया में जिनका उद्धार हुआ है उन्हें जोड़ता है। So don't worry about that. God will add. You just be faithful in your life and in your home. और इसकी कोई चिंता न करे, आप विश्वास योग्य रहे अपने घर में, अपने कलीसिया में, प्रभु आप में जोड़ेगा। If you are faithful, God will wonderfully add to the church. अगर आप विश्वास योग्य हो तो अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके कलीसिया में जोड़ेगा। So don't condemn yourself that you are not making more converts to Christ. और अपने आप को दोषी न ठहराए कि आप ज्यादा लोगों को मसीह में नहीं लाते। Yeah, there is more I have on my heart. I'll tell you tomorrow, God willing. और मेरे हृदय में और भी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रभु की इच्छा हो तो मैं कल आपको बताऊंगा। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to remember what is most important in the Christian life. कृपया हमारी सहायता करके हम इस बात को याद रख पाए कि मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। And help us all not to glory and be proud of foolish things. और हमारी सहायता कर प्रभु की मूर्ख बातों के बारे में ना ही हम महिमा करें, ना उसमें बड़ाई या घमंड करें। We have suffered almost nothing compared to the Apostle Paul. प्रेरित पौलुस की तुलना में हमने कुछ भी दुख नहीं उठाया, पीड़ा नहीं सही। We cannot boast about anything. हम किसी भी बात में बड़ाई नहीं कर सकते प्रभु। We put our face in the dust and say, Lord, have mercy on us. हम अपने मुंह को धूल में रखकर कहते हैं, हे पिता हम पर दया कर। Forgive us for all the foolish pride we have had in past years. जो मूर्खता से घमंड इन पिछले वर्षों में हमें था, उसके लिए हमें क्षमा कर। Help us to glory only in the Lord Jesus Christ. और हमारी सहायता कर कि केवल प्रभु यीशु में ही हम महिमा करें। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।